Hello everyone, so welcome to topic study. The topic that I'm going to teach you today is bogus compounds. What basically bogus compounds are? What happens is when cement reacts with water, it forms chemical compounds, and these chemical compounds are known as bogus compounds. Fine. So the definition is when water is added to the cement, the ingredients of cement react chemically with water and they form various complicated chemical compounds known as bogus compounds. फाइन नाउ व्हाट हैपेंस इज जब कभी भी हम सीमेंट और पानी को मिलाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड दीज केमिकल रिएक्शंस फॉर्म वेरियस केमिकल कंपाउंड्स एंड दोज केमिकल कंपाउंड्स आर नोन एज बोगस कंपाउंड्स. Second thing is the formation of these compounds is not simultaneous. फाइन. जो ये कंपाउंड्स बनते हैं व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद सीमेंट, ये एक साथ नहीं बनते. फाइन. वन आफ्टर द अदर दीज कंपाउंड्स आर मेड. फर्स्ट one compound will be made, then second, then third, then fourth, like C3S, C2S, C4AF and C3A. These are the compounds that are formed when cement reacts with water. Fine. So इससे क्या होता है कि जो भी ये कंपाउंड बनते हैं वो वन आफ्टर द अदर बनते हैं. नाउ ड्यू टू दिस व्हाट सेटिंग एक्शन ऑफ कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जो ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इनके कारण क्या होता है, ये एक साथ तो बनते नहीं हैं, ये वन आफ्टर दी अदर, मतलब एक कंपाउंड आज बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा. ठीक है. सो दे फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो इसलिए ये सेटिंग प्रॉपर्टी को भी इन्हेंस करते हैं या फिर वेरी करवाते हैं. ठीक है. जैसा यहाँ पे लिखा है, बट सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ मूविंग ऑन, द फर्स्ट कंपाउंड इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. Okay, and its formula is 3CaO SiO2 and it is abbreviated as C3S. It's just a denoted as C3S. Now second is dicalcium silicate. It is denoted as twice CaO SiO2 and it is abbreviated as C2S. Now third is tricalcium aluminate. It is denoted as 3CaOAl2O3 and C3A. The fourth compound is tetracalcium aluminoferrite, that is 4CaOAl2O3 Fe2O3 and it is denoted as C4AF. So these are the compounds formed when cement reacts with water. These are the bogus compounds. This is the name of bogus compound. These are the formulas and this is the abbreviation how you will be using these bogus compound in a short form. Now the percentage of bogus compound. First is C3S. C3S is present in cement near about 30 to 50% is C3S, tricalcium silicate. Second compound that is found in most in the cement is C2S, that is 20 to 45%. I'm talking about bogus compounds, not constituents of cement. Fine. Now third is C3A. C3A, it is nearly about 8 to 12%. And fourth is C4AF, tetracalcium aluminoferrate. It is about 6 to 10%. So these are the various percentages in which bogus compounds are present. Fine. Now what happens is it is found that the ordinary cement achieves about 70% of its final strength in 28 days. कोई भी सीमेंट होगा उसकी 70% स्ट्रेंथ वो अपनी कितने दिन में गेन कर लेता है, इन 28 days it gains about 70% of its strength and about 90% of its final strength in 1 or so. और एक साल में वो अपनी 90% जो है स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है. और ये भी माना जाता है कि जो ऑलमोस्ट 28 दिन है उसके अंदर सारे जितने भी सीमेंट हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है. फाइन. नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, दिस इज C3CaOAl2O3. अब ये कंपाउंड क्या है जो सबसे पहले बनता है, दिस कंपाउंड इज दैट कंपाउंड. सो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इट इज़ फाउंड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर. जैसे ही हम पानी डालेंगे उसके 24 घंटे के अंदर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन. अब क्या होता है जब सीमेंट और वाटर रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व होती है, उसमें से हीट इवॉल्व होती है. सो जो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो किसके कारण आती है, वो आती है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. Fine. Now second compound is tetracalcium aluminoferrate. It is denoted as 4CaOAl2O3 Fe2O3. Fine. And this compound is also formed within
अबाउट 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट होता है वो भी 24 घंटे के अंदर बन जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी, जब केमिकल्स रिएक्ट करेंगे तो उसमें से हीट इवॉल्व होगी। सो इसके लिए भी क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट रिस्पॉन्सिबल है। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। Okay, and tricalcium silicate, it is denoted as 3CaOSiO2। अब जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है ये कितने दिन में बनता है? दिस कंपाउंड इज फॉर्म विद इन अ वीक एंड सो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर टू द सीमेंट। एक वीक के अंदर ये कंपाउंड बन जाता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ टू द सीमेंट इन अर्ली पीरियड ऑफ सेटिंग। जो जैसे ही हम सीमेंट को प्लेस करेंगे उसकी जो अर्ली स्ट्रेंथ आएगी वो किसके कारण आएगी? वो आएगी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के। सो द अर्ली स्ट्रेंथ of cement is due to tricalcium silicate. And in question papers or in exams like SSC and other state exams, questions directly come that which component of cement or which Bogues compound is responsible for initial strength of cement. So that answer is tricalcium silicate. Fine. Now moving on, the fourth compound. Now, fourth is dicalcium silicate. It is denoted as twice of CaOSiO2. Now what happens is the dicalcium silicate, it forms slowly. This compound is formed slowly and hence it takes a year or so to form. So the point here written is this compound is formed within very slowly and hence it is responsible for giving progressive strength to the cement. जो हमारे पास latest stage strength आती है that is due to dicalcium silicate. Now what happens is during the initial period of hardening, the gain of strength of C3S, C2S, okay, it is written as C2S is small and it is about 15% of C3S. अब जब हम इनिशियल पीरियड की बात करेंगे तो क्या होता है, जो C2S के कारण जो स्ट्रेंथ आती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो जो C2S है वो किस लिए है, वो लेटेस्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए है। तो अब जब स्टार्टिंग की बात होती है तो C2S की काफ़ी कम होती है। इट इज़ अबाउट 15% ऑफ C3S। जितनी C3S की स्ट्रेंथ होती है उसकी 15% डाइकैल्शियम सिलिकेट में होती है। अब क्या होता है, आफ्टर 28 डेज द हाइड्रेशन ऑफ C3S comes practically to an end and the hydration of C2S only really begins at that time. इसका मतलब है कि जो C3S, जो पहले हमारा C3S बना था, उसका क्या है, कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाता है विद इन 28 डेज। सो वो अपना काम कर चुका होता है। नाउ आफ्टर 28 डेज द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज C2S। उसके बाद अपना C2S बनना फॉर्म होता है, ठीक है। सो जो भी काम आफ्टर 28 डेज करेगा वो C2S करेगा। Hence, when a high strength concrete is required within short period of time, the cement is made with a high content of C3S. Hence, now this point is written as when a high strength concrete is required within a short period of time, the cement is made with a high content of C3S. ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमें क्विक वर्क कराना है, जैसे हमें रोड वर्क कराना है, तो हमें क्या करना है, जल्दी से हमें सीमेंट प्लेस करना है, उसे हमें जल्दी से स्ट्रेंथ देनी है, ठीक है। हम जल्दी से अगर कहीं पे भी हमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ा देंगे। सो जैसे कि हम रोड वर्क करते हैं तो उसमें हमें क्या है, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए स्टेजेस में, तो हम उसमें क्या करेंगे, C3S को बढ़ा देंगे। फाइन, सो दिस पॉइंट इज अबाउट दिस। नाउ मूविंग ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड एट लेटर स्टेज, अगर हमें ऐसा कॉन्क्रीट चाहिए जिसको हमें लेटेस्ट स्टेज में स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी चाहिए, जैसे कि डैम, ठीक है। सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डैम्स, तो हमें डैम्स में क्या है कि हमें इनिशियली उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं भी मिले तो हमें लेटर जब उसमें लोड आएगा काफ़ी ज़्यादा, तो हमें उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी चाहिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, C2S को इंक्रीज़ कर देंगे। सो द पॉइंट रिटन हियर इज ऑन द अदर हैंड, इफ अ हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड लेटर स्टेज एज इन केस ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, द सीमेंट इज मेड विद अ हाई कंटेंट ऑफ C2S, ठीक है। जब भी हमें लेटेस्ट स्टेज स्ट्रेंथ चाहिएगी तो हम C2S की मात्रा को बढ़ा देंगे। फाइन, नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। नाउ हाइड्रेशन क्या होता है, जब भी हम सीमेंट को जो हम सीमेंट ले रहे हैं उसमें कितना पानी चाहिए कि वो उसको कंप्लीटली हाइड्रेट कर दे, सो दैट बोगस कंपाउंड फॉर्म्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें कितना पानी चाहिए, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। So what happens is water by 23% by weight of cement is required to carry out complete hydration. किसी भी सीमेंट का complete hydration कराने के लिए हमें 23% by weight of cement पानी चाहिए होता है, ठीक है। सपोज इफ वी टेक 100 kg सीमेंट, सो हमें इसमें 23 kg ऑफ वाटर चाहिएगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सीमेंट, एंड अबाउट 15% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड यूजिंग फिलिंग इन वॉइड्स। अब सीमेंट क्या है, सीमेंट एक पार्टिकुलेट मटेरियल है,
ठीक है, उसमें काफ़ी बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वॉइड्स होंगे. सो टू फिल दोज वॉइड्स वी नीड एडिशनल 15% ऑफ water by weight of cement to fill those voids. So hence effectively we require 38% by weight of cement to complete hydration. So for complete hydration of cement we need about 38% by weight of water. I hope you understand what bogus compounds are and the different constituents of bogus compounds. Fine. So please do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.